So here we are again with our new topic, that is climate of India. This is a very common topic in social studies, climate of India. We are talking about our climate of India. What is weather? Before understanding climate, what we first have to understand is weather. Weather refers to the atmospheric conditions experienced in a place for a short period of time. Whenever we see climate, we can understand that it is for a short period of time. This is weather. Weather occurs for a short duration. This is known as weather. Now, what is climate? Weather conditions over a long period of time. What is climate? Climate occurs for a long period of time, over a long period of time. How much rainfall each year, average temperature for a place. This is an example of climate. How much rainfall each year, such a big thing. Average temperature for a place. Climate and weather are similar, but not the same thing. Climate is equals to long period of time. Weather is equals to right now. Weather, for example, what is the current weather? What was the weather um, tomorrow or yesterday? That was for a long period. Or what? For example, we can use the monsoon for climate. Hmm. As the duration of monsoon is large and vast. द क्लाइमेट ऑफ अ कंट्री अफेक्ट्स द लाइव्स ऑफ द पीपल. जो क्लाइमेट होता है कंट्री का वो अफेक्ट करता है किसको? लाइव्स ऑफ द पीपल living in that country. The type of vegetation and wildlife found in a country also depends on its climate. Climate affects our country on a vast level. Lives of the people, it affects the lives of the people living in that country. The type of vegetation and wildlife found in a country also depend on its climate. India is a very large country, so different parts of the country experience different types of climate. Some places are very hot and some are very cold. The places near the oceans and seas neither too hot nor too cold. They have a moderate temperature because of the um, um, because of land and water breezes. This is one of the factor. Then heating and cooling of the land and water. So there are various factors which affect the climate of a particular place. We will understand these things in detail. Factors affecting climate of India: temperature, wind and sunshine. These three factors affect the climate of India on a vast level, like temperature, then we have wind and sunshine. Temperature affects the climate of India. The temperature level will affect the climate of India, whether the climate will be high or the climate will be low. Then we have wind, then sunshine. Location. Other various factors that affect the climate of India. What are the other factors which affect the climate of India? So location. The Tropic of Cancer passes through India. जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है वो इंडिया के पास से क्रॉस करती है. हमें पता है इंडिया में तो पूरे 8 स्टेट से क्रॉस करती है. दिस मेक्स इट अ ट्रॉपिकल कंट्री कैरेक्टराइज्ड बाय हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. अब देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्योंकि हमारे इधर इक्वेटर के ऊपर से क्रॉस करती है, इंडिया के बीच से निकलती है, मध्य से निकलती है, एंड दिस मेक्स इट अ ट्रॉपिकल कंट्री. और ये इंडिया को ट्रॉपिकल कंट्री बनाती है, कैरेक्टराइज्ड बाय हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. ठीक है. जहाँ पे सन की डायरेक्ट किरणें पड़ती हैं, इस कारण से जो हमारा जो क्षेत्र होता है, जो क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है? हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है. मानसून क्लाइमेट नहीं होता, कोल्ड क्लाइमेट नहीं होता, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है. ना बहुत ज़्यादा गर्म होता है ना बहुत ज़्यादा ठंडा होता है. कैसा रहता है? मॉडरेट टेम्परेचर में हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है. अदर वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, है ना. अदर वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया: डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड इट्स इफेक्ट ऑन वेदर. अब जो डिस्टेंस होता है ना हमारा सी लेवल से, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है हमारे क्लाइमेट को. कैसे? इंडिया इज़ अ वास्ट पेनिनसुलर कंट्री. हम जानते हैं कि इंडिया एक बहुत बड़ा वास्ट पेनिनसुलर कंट्री. पेनिनसुला, एज वी ऑल नो, द लैंड विच इज़ कवर्ड with 3 sides with water. The land covered with 3 sides with water. So many states are close to the sea. हम समझ गए कि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स होंगे नीचे साउथ एरिया में जो पानी से जो सी के बहुत नज़दीक होंगे. द डिस्टेंस फ्रॉम द सी लार्जली डिटरमाइन इट्स विंड एंड रेनफॉल पैटर्न. एंड जो डिस्टेंस होता है ना सी से, लार्जली डिटरमाइन करता है उसका विंड और रेनफॉल पैटर्न. विंड और रेनफॉल पैटर्न को बहुत ज़्यादा डिटरमाइन करता है.
ठीक है, कैसी विंड आएंगी, कैसा रेनफॉल रहेगा, क्योंकि पानी और हवा का जो संबंध होता है वो यहाँ से कुछ मेल खाता है, ये डिस्टेंस फ्रॉम द सी होता है। ठीक है, ब्रीजेस चलती हैं, यहाँ पे इतने डिटेल में मेंशन नहीं है, जब डिटेल वीडियो बनाएंगे तो उसमें और अच्छे से मेंशन करेंगे। अदर वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, ये तो हमने पढ़ा, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। देन वन ऑफ द मेजर फैक्टर विच अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया द हिमालयस, ड्यू टू द ग्रेट हिमालय, द ग्रेट हाइट, द हिमालयस बिहेव एज अ क्लाइमेट बैरियर टू दी नॉर्थ, दे कन्फाइन द मानसून्स टू इंडिया। देखो, बहुत ज़्यादा जो भारी वर्षा और जो भारी हवाएं होती हैं उनको आने से रोकता है कौन, हमारा ग्रेटर हिमालय, जो कहाँ सिचुएटेड है, जो नॉर्थ में सिचुएटेड है, जो नॉर्थ में है। और वो क्या करता है, जो नॉर्थ में रहता है तो वो कभी 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 नहीं, हमेशा क्या करता है, एक बैरियर की तरह काम करता है, जो क्या करता है, हवाओं को रोकता है आने से, बड़ी बड़ी हवाओं को, घनी हवाओं को, ठंडी हवाओं को, गर्म हवाओं को, जिस भी तरीके की हवाएं आती हैं जो कभी मतलब क्या ख़तरनाक हो सकती हैं हमारे इंडिया के लिए, उनको रोकता है। ठीक है। देन अदर वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, फिजिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं, तो डिफरेंट फिजिकल फीचर्स कॉज वेरिएशन इन क्लाइमेट। फॉर एग्जाम्पल, द सी फेसिंग साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स रिसीव हैवी रेनफॉल, वेयर इज द एरियाज बिहाइंड इट रिमेन्स ड्राई। फिजिकल फीचर्स थे ये, इसमें सिंपल सी बात ये लिखी है, जो डिफरेंट फिजिकल फीचर्स होते हैं वो वेरिएशन कॉज करते हैं क्लाइमेट में। फॉर एग्जांपल, द सी फेसिंग साइड्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, अब जो वेस्टर्न घाट्स है वो हैवी रेनफॉल रिसीव करता है, वो एरिया ऐसा है कि वो हैवी रेनफॉल रिसीव करता है, वेस्टर्न घाट्स वाला, सह्याद्री भी कहते हैं जिसे हम। वेयर एज द एरिया रिमेन्स बिहाइंड इट रिमेन्स ड्राई। ठीक है, इतना हमने समझा। उसके बाद ऑल्टीट्यूड बहुत अफेक्ट करता है। ऑल्टीट्यूड को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं हाइट। ऑल्टीट्यूड सिंपली मीन्स हाइट। अदर वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, प्लेसेस लोकेटेड एट हायर ऑल्टीट्यूड्स, हमने हिमालय तो पढ़ा ही, और भी बहुत सारी हाईएस्ट पीक्स होती हैं, जैसे कि केटू है, कंचनजंगा है ना, और अनामुड़ी है, ये सब क्या हाईएस्ट माउंटेन पीक्स होती हैं, कुछ साउथ में लाया करती हैं, कुछ नॉर्थ में लाया करती हैं, कुछ वेस्ट ईस्ट में लाया करती हैं, तो ये ऑल्टीट्यूड होता है। ठीक है, उसके बाद प्लेसेस लोकेटेड एट हायर ऑल्टीट्यूड्स एक्सपीरियंस रिलेटिवली कोल्डर क्लाइमेट, हमें पता है चोटी होगी तो ऊपर का एरिया ठंडा रहेगा, क्योंकि हाइट बढ़ रही है तो टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है ना, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है ना। ठीक है, लाइक हिल स्टेशन और माउंटेन टॉप्स, जैसा कि हम समझ गए। उसके बाद देखो, टेम्परेचर, विंड, रेनफॉल, सनशाइन, लोकेशन, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, हिमालयाज, फिजिकल फीचर्स, ऑल्टीट्यूड, ऑल दीज फैक्टर्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ एन एरिया। ये क्या करता है, ये कुछ फैक्टर्स होते ही हैं जो हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करते ही करते हैं, जैसे कि हमारा टेम्परेचर अफेक्ट करता है, हमारा विंड अफेक्ट करती है, रेनफॉल अफेक्ट करता है, सनशाइन, उस एरिया में कैसी सनशाइन है, लोकेशन कैसी है, डिस्टेंस कैसा है सी के साथ, हिमालयाज क्या वर्क कर रहे हैं, है ना, किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, द फिजिकल फीचर्स, ऑल्टीट्यूड, क्लाइमेट डिटरमाइन द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल लिविंग इन इंडिया। लाइफ स्टाइल इंक्लूड क्लोथ्स, food, crops, fertile, as it is known that climate will definitely determine the clothes, food, crops, fertile land, everything, है ना। How the climate of a particular place will determine the crops first of all, then the soil level, then foods, then the climatic condition will affect the clothing style of that particular place, whether the climate is hot or cold. It will the suitability of the climate will depend on our clothing. Okay, then you have seasons. India's climate can be broadly be divided into three main seasons: summer, winter and monsoon. Northeast India, Kashmir Valley experiences spring and autumn. Okay, so here we are mentioning seasons in India. Summer season, first of all we have summer season. Hot weather. Characteristics of summer season in climate are hot weather, last from middle of March to end of June, as currently summer season is going on, which starts from March to end of the June. This is the hottest months, May and June. Longer days and shorter nights. The characteristic of the summer seasons are longer days and shorter nights. Mountains are cool. Mountains will remain cool because the altitude of mountains are high. People visit hill stations to escape the heat of the plains. Those residing in the plain regions in India mostly prefer to go hill stations like Mussoorie, Mount Abu, or are the places which are of good temperature, or where they can feel a kind of satisfaction
they will visit. Okay, then your summer season, hot dry winds. This is the climatic aspect of the summer season. What first of all, see this map, Indian geographical map. This is the Trans Himalaya on the Jammu Kashmir side. Okay, then you have the Himalayas, then there are northern plains, then the Indian desert, the Central Highlands, the Deccan Plateau, the Western Ghats or Sahyadri in the west side, the Eastern Ghats in the east, Northeast India, Sikkim, Manipur, Assam, Meghalaya. This is the Northeast India, the Himalayas. This is the Indian geographical map. The basic things are mentioned in this map. Hot dry winds called लू, जिसे हम लू कहते हैं, शॉर्टली हम लू कहते हैं, ब्लो इन दी आफ्टरनून थ्रू द नॉर्दर्न प्लेन्स. नॉर्दर्न प्लेन्स जो ऊपर ये नॉर्दर्न प्लेन्स यहाँ पे हम मेंशन है, ये नॉर्दर्न प्लेन्स यहाँ पे जो मेंशन है, यहाँ पे क्या बोलती है, हॉट ड्राई विंड्स ब्लो करती हैं, जिसे हम लू कहते हैं. डस्ट स्टॉर्म्स होते हैं कॉमन. नॉर्दर्न प्लेन्स हाईएस्ट टेम्परेचर रहता है. डेक्कन प्लेटू जो होता है, अब देखो डेक्कन प्लेटू ये बीच वाला सदर्न पार्ट में जो डेक्कन प्लेटू लाई करता है, कूल रहता है ड्यू टू हाइट रहती है उसके पास, एंड क्लोजनेस टू द सी के भी काफ़ी क्लोज रहता है, तो उसमें ठंडक रहती है. कोस्टल एरियाज रिमेन कूल बिकॉज विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द सी. कोस्टल एरियाज भी इस वक्त ठंडे रहते हैं. गर्मी इस वक्त कहाँ बताई जा रही है, नॉर्दर्न एरियाज में बताई जा रही है. कोस्टल एरियाज कूल इसलिए रहते हैं क्योंकि वो कोस्ट के नज़दीक होते हैं, वो सी के नज़दीक होते हैं, उनको पानी से ठंडक मिलती है. ठीक है. देन कम्स दी मानसून सीजन टुवर्ड्स द एंड ऑफ समर सीजन. अब देखो जैसे ही समर सीजन आता है या फिर जैसे समर सीजन ख़त्म होता है, तो हमारी जो एयर होती है, जो हवा होती है, उसमें ह्यूमिडिटी आने लगती है, ह्यूमिडिटी बढ़ने लगती है. जो नमी होती है वो हमारे एटमॉस्फेयर में नमी दिखने लगती है जैसे ही समर जाता है. अब जैसे कि हमारा समर चल रहा है, समर जाएगा, जुलाई सितंबर आएगा तो बारिश का सीज़न आएगा. धीरे धीरे क्लाउड्स आएंगे, क्लाउड्स फॉर्म होंगे, ह्यूमिडिटी आएगी मौसम में, धीरे धीरे फुहारें आएंगी, फिर बारिश अच्छी खासी होगी, है ना. तो ये क्या होता है, ह्यूमिडिटी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, स्टार्ट्स इंक्रीजिंग. ऑनसेट ऑफ मानसून सीजन. अब क्या होगा, मानसून सीजन का ऑनसेट होगा और इसका टाइम पीरियड क्या रहता है, जून टू सितंबर. मानसून सीजन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हैवी मॉइस्चर लेडन ऑफ एयर और क्लाउड्स कैरिंग अ लॉट ऑफ मॉइस्चर. ऐसे क्लाउड्स फॉर्म होते हैं ऊपर आसमान में, ऐसे क्लाउड्स फॉर्म होते हैं जिनमें मॉइस्चर का जो लेवल होता है ना वो बहुत हाई होता है. रेन बियरिंग विंड्स होती हैं. अब विंड्स भी ऐसी चलती हैं जो रेन बियरिंग क्लाउड्स को लेकर चलती हैं, जैसे टुवर्ड्स इंडियन मेनलैंड. ठीक है. फ्रॉम द अरेबियन सी टू द बे ऑफ बंगाल. ठीक है. रेन बियरिंग विंड्स होती हैं टुवर्ड्स द इंडियन मेनलैंड फ्रॉम द अरेबियन सी टू द बे ऑफ बंगाल. ठीक है. डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस कंट्रीज अनइवन. जो डिस्ट्रीब्यूशन रहता है अक्रॉस द कंट्री वो क्या रहता है, अनइवन रहता है मानसून सीज़न का. कहीं जगह बारिश अच्छी होती है, कहीं बारिश ही नहीं होती है, कहीं बारिश वाला सीज़न अच्छा चल रहा होता है, कहीं नहीं चल रहा होता है, कहीं विंड्स अफेक्ट करती हैं, कहीं तूफान आ जाता है, कहीं तूफान ही नहीं आता, कहीं बारिश कहीं होती ही नहीं है. तो डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस कंट्री फॉर मानसून इज़ अनइवन. सम एरिया मोर रेन, सम लेस और नो रेन. मोर रेन आर रिस्पॉन्सिबल इन द कोस्टल एरियाज, है ना. कोस्टल एरियाज आर द दिस पार्ट. दिस इज द सदर्न रीजन ऑफ द इंडियन मैप, द लोअर रीजन ऑफ द इंडियन मैप. दिस इज नोन एज द कोस्टल रीजन. कोस्टल रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोर रेन. देन लेस रेन. Less rain is scanty rainfall, or we can say that the regions responsible for scanty rainfall is Rajasthan, above Gujarat. Then Gujarat even leads to drought. Sometimes Gujarat leads to drought, Rajasthan leads to drought. Monsoon seasons, more rain downpour causes floods, landslides. Monsoon season, more rain downpour causes. Then मतलब पानी का भर जाना, गड्ढे फुल हो जाना, पडल, बहुत सारी चीज़ों का पानी भर जाना उसमें गड्ढों का. देन वी हैव फ्लड्स भी आते हैं, पानी की बारिश की मात्रा. जैसे कोस्टल एरियाज़ में फ्लड्स आना बहुत ही कॉमन चीज़ है. लैंडस्लाइड्स हो जाना. अब जैसे कि नॉर्दर्न साइड, नॉर्थ ईस्ट में यदि हम बात करते हैं, जब बारिश का समय होता होगा तो उधर लैंडस्लाइड्स बहुत कॉमन है, क्योंकि वो पहाड़ों का रीजन भी है. मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, है ना. और ये जितनी भी है वहाँ पे लैंडस्लाइड्स का आना बहुत कॉमन है. मानसून सीजन अफेक्ट करता है हर रीजन को अलग अलग तरीके से. फ्लड भी आते हैं, लैंडस्लाइड्स भी होता है. फ्लड नहीं भी आते हैं, लैंडस्लाइड्स नहीं भी होते हैं. वेरिएशन है रीजन्स में. रीजन जब वेराई करेंगे एक दूसरे से तब बात अलग हो जाएगी मानसून की. मानसून सीजन तो तमिलनाडु जो होता है, तमिलनाडु इज़ द सदर्न पार्ट. तमिलनाडु रिसीव्स रेनफॉल बिटवीन नवंबर एंड जनवरी. बहुत आसान है चीज़ समझ को. ये जो रेड एरिया शो हो रहा है मैप पे, ये तो कोई क्या बता रहा है कि नवंबर और जनवरी में जो होता है तमिलनाडु रेनफॉल को रिसीव करता ही करता है. ठीक है. तमिलनाडु में रिसीव रेनफॉल बिटवीन नवंबर एंड जनवरी. उसका टाइम पीरियड है कि नवंबर टू जनवरी तमिलनाडु रेनफॉल रिसीव करता है, ये उसका अलग टाइम पीरियड है. ठीक है. मानसून सीजन, द साउथ वेस्ट मानसून. हमारे इंडिया में कौन सा मानसून आता है, साउथ वेस्ट मानसून आता है. मतलब साउथ वेस्ट हवाएँ चलती हैं, साउथ वेस्ट से हवाएँ चलनी स्टार्ट होती हैं. द साउथ वेस्ट मानसून बिगन्स टू विथड्रॉ फ्रॉम इंडिया बाय द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर.
विथड्रॉ करती हैं इंडिया से बाय द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। द साउथ वेस्ट मानसून बिगन्स टू विथड्रॉ फ्रॉम इंडिया बाय द फर्स्ट वीक ऑफ अच्छा, जो साउथ वेस्ट मानसून होता है वो अपने आप को विथड्रॉ कर देता है, चला जाता है इंडिया से बाय द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से जाना स्टार्ट कर देता है। इट लीव्स जम्मू एंड कश्मीर, द नॉर्दर्न प्लेन्स, देन पेनिनसुलर इंडिया, मूविंग साउथवर्ड। अब देखो हाँ, वो क्या करता है, जम्मू कश्मीर को लीव करता है, नॉर्दर्न प्लेन्स को लीव करता है, पेनिनसुलर इंडिया को लीव करता है, मूविंग साउथवर्ड जाने लगता है। सबसे पहले मानसून क्या होता है, नीचे की साइड आना शुरू होता है, साउथवर्ड मानसून होता है सबसे पहले, ठीक है। एंड देन वेस्टवर्ड्स आता है, साउथवर्ड्स ही है। अब वो जाने का टाइम बताते हैं सबसे पहले, जब हम मानसून पढ़ते हैं तो जाने की शुरुआत से आने की शुरुआत बताते हैं, ठीक है। तो मूविंग साउथवर्ड्स एंड वेस्टवर्ड्स, व्हेन इट रीचेस द चेन्नई कोस्ट, सबसे पहले कहाँ पहुँचेगा, चेन्नई पहुँचेगा, चेन्नई की कोस्ट पे पहुंचेगा। चेन्नई कहाँ पे सिचुएटेड है, साउथ इंडिया में सिचुएटेड है। ऑन इट्स वे बैकवर्ड्स, व्हेन इट रीचेस द चेन्नई कोस्ट ऑन इट्स बैकवर्ड्स, पीछे की साइड जब चेन्नई पे आता है, जैसे मतलब छोड़ पे आता है, जब शुरुआत पे आता है चेन्नई की, इट इज़ चेक्ड बाय द ईस्टर्न घाट्स एंड इम्पार्ट्स रेन टू द चेन्नई कोस्ट। तो कहीं ना कहीं जो ईस्टर्न घाट्स होते हैं वो भी अफेक्ट होते हैं, क्योंकि जो चेन्नई रीजन है वो कहाँ पे पड़ता है, वो ईस्ट साइड पड़ता है। ईस्टर्न घाट्स भी अफेक्ट होते हैं, जो क्या करते हैं, इम्पार्ट करते हैं रेन को, रेन आने के लिए बहुत अच्छे रहते हैं टू द चेन्नई को, जिससे क्या होगा, रेन आएगी, ठीक है। अब मानसून प्लेज अ मेजर रोल इन एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया। अब जो मानसून होता है वो एक बहुत ही मेजर, अब देखो ये डायग्राम में बहुत सुंदर डायग्राम, एक पिक्चर सीनरी शो की है जिसमें क्लाउड्स हैं, रेनफॉल हो रही है, नीचे एग्रीकल्चर शो किया गया है और लोग अपना काम कर रहे हैं। इसमें मानसून ये मानसून की कंडीशन होती है, ये मानसून है, ये रेनी सीजन है। मानसून प्लेज अ मेजर रोल इन द एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया। जो मानसून है वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है एग्रीकल्चर में, क्योंकि इंडिया का बैकबोन एग्रीकल्चर है, और एग्रीकल्चर के लिए हमारा मेन एम क्या है, मानसून होना ही होना चाहिए। सोइंग एंड हार्वेस्टिंग कैलकुलेटेड बाय मानसून साइकिल, हमें पता है सोइंग और हार्वेस्टिंग दोनों चीज़ें होती हैं जो मानसून साइकिल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। इफ़ मानसून इज़ लेट कॉजेज ह्यूज लॉस, अगर मानसून लेट आता है या मानसून कभी कभी जल्दी भी आता है तो भी ह्यूमन लॉस होता ही होता है, बहुत बड़ा लॉस होता है, ठीक है। उसके बाद आता है विंटर सीजन। हमने दो सीज़न पढ़े, समर और मानसून, देन विंटर सीजन। अब विंटर सीजन क्या होता है, कोल्डेस्ट वेदर, किस कैरेक्टरिस्टिक्स मिड नवंबर टू फरवरी रहता है ये, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस दौरान, नवंबर टू फरवरी में बहुत अच्छे सीज़न रहते हैं, विजिटर्स के लिए बहुत अच्छे सीज़न रहते हैं, कहीं भी जाओ, घूमो फिरो, समझो चीज़ों को, देखो, है ना। उसका डेज आर शॉर्टर, नाइट्स आर लॉन्गर, लंबे लंबे दिन होते हैं, शॉर्टर दिन होते हैं, नाइट लंबी होती है। कोल्डेस्ट मंथ होता है दिसंबर जनवरी नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में तो बहुत ही आसान है समझना, जहाँ पे हम रिसाइड करते ही हैं, कि नॉर्थ इंडिया में यदि देखा जाए तो जो कोल्डेस्ट मंथ है वो दिसंबर का होता है और जनवरी का होता है नॉर्थ इंडिया में। देन विंटर सीजन, नॉर्दर्न माउंटेन्स गेट स्नोफॉल एंड नॉर्दर्न प्लेन एक्सपीरियंसेस लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर का मतलब ही होता है विंटर सीजन, टेम्परेचर लो है मतलब विंटर सीजन है। विंटर सीजन, अब देखो नॉर्थ इंडिया मतलब ऊपर की साइड चलो, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, ये नॉर्दर्न इंडिया है, ठीक है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, देहरादून, हरियाणा, न्यू दिल्ली, यहाँ तक इन्हें दिल्ली तक लिया नॉर्थ इंडिया को, यहाँ तक ही माना जाता है, वैसे नॉर्थ इंडिया दिल्ली तक माना जाता है। जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब एक्सपीरियंसेस फ्रीजिंग टेम्परेचर। इस दौरान नॉर्थ इंडिया में जब विंटर आता है तो ये एक फ्रीजिंग टेम्परेचर को फील करते हैं। अब विंटर सीजन तो देखो स्ट्रॉन्ग विंड्स फ्रॉम वेस्ट। अब देखो हमारा जो वेस्टर्न साइड होता है ना, नॉर्थ इंडिया में लगाओ वेस्टर्न साइड, तो जो वेस्ट से जो बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं ना, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कॉज करती हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कॉजेज रेन, वो रेन कॉज करता है इन द प्लेन्स एंड स्नोफॉल इन द माउंटेन्स इन विंटर, ठीक है। विंटर सीजन, प्रॉक्सिमिटी नियरनेस इन स्पेस टू द हिमालयाज इन द नॉर्थ। अब देखो इसको और अच्छे से समझते हैं, ये तो यहाँ पे देखो, प्रॉक्सिमिटी नियरनेस टू इन स्पेस इन टू द हिमालयाज इन द नॉर्थ एंड टू द कोल्ड वेव सिचुएशन इन द रीजन्स, ठीक है। देखो विंटर सीजन, वेस्टर्न डेजर्ट्स होते हैं। अब जो वेस्टर्न साइड में जो डेजर्ट है, वेस्ट साइड में हमारे मैप पे जो हम समझ सकते हैं, जो उधर कूल्डर नाइट होती हैं और प्लीजेंट डेज होते हैं। जहाँ पे रेगिस्तान होते हैं वहाँ पे पता ही हमें कि रातें ठंडी होती हैं, लंबी होती हैं और दिन खुशमिजाज होते हैं। साउथ इंडिया में कोस्टल एरिया जो होता है वहाँ पे कुछ विंटर सीजन डिफाइन नहीं किया जाता है ना, मतलब साउथ इंडिया में कोस्टल एरियाज नो सच डिफाइंड विंटर सीजन। रीज़न प्रॉक्सिमिटी टू द सी एंड द इक्वेटर, तालमेल रहता है उसमें सी में और इक्वेटर में, उधर कुछ अच्छा विंटर सीजन नहीं माना जाता।
उधर रेनफॉल बहुत अच्छा माना जाता है कोस्टल एरियाज में। रीज़न इसका ये कि प्रॉक्सिमिटी टू द सी एंड इक्वेटर। प्रॉक्सिमिटी का मतलब यहाँ पे तालमेल समझ लो, अभी तालमेल रहता है सी और इक्वेटर में। अच्छा, ऑटम एंड स्प्रिंग सीजन, तो ऑटम कम्स जस्ट आफ्टर रेनी सीजन। देखो रेनी सीजन के बाद जस्ट आफ्टर ऑटम आता है, वसंत जिसे कहते हैं ना, वसंत होता है ना ऑटम, ठीक है, ऑटम सीजन आता है, ठीक है, आफ्टर रेनी सीजन, बिफोर द ऑनसेट ऑफ द विंटर सीजन। विंटर के आने से पहले ऑटम आता है, जिसमें नई नई पत्तियाँ आती हैं, है ना, नए नए फूल आते हैं, रोड से सड़क जो है सज जाती हैं, जो पूरा अच्छे से हमारा वो मतलब बिल्कुल बहुत अच्छे से हमारा पूरा प्रिपेयर कर देता है, ठीक है। इट इज़ द टाइम व्हेन लीव्स फॉल ऑफ द ट्रीज। ये वह समय होता है जब पेड़ अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। ऑटम एंड स्प्रिंग सीजन, ठीक है, द स्प्रिंग सीजन कम्स आफ्टर विंटर इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल बिफोर द ऑनसेट ऑफ समर। स्प्रिंग सीजन कब आता है? वो आता है विंटर मंथ के बाद, विंटर इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल के समय समझ लो। बिफोर पूरी तरीके से गर्मियाँ भी नहीं आ पाती। बिफोर द ऑनसेट ऑफ समर, समर से पहले ऑटम आता है, सॉरी स्प्रिंग आता है, और विंटर से पहले अपना ऑटम आता है, ऑटम एंड स्प्रिंग सीजन, ठीक है। ड्यूरिंग दिस सीजन प्लांट्स एंड ट्रीज बियर न्यू लीव्स एंड फ्लावर्स ब्लूम। ये बहुत ही बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है कि जब ये दोनों क्या बोलते हैं सीजन्स आते हैं तो बहुत ही अच्छा माहौल क्रिएट हो जाता है ना, लीव्स फ्लावर्स काफ़ी ब्लूम हो जाते हैं, एकदम खुश मिजाज से खिल जाते हैं। क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ इंडिया, इंडिया इज़ अ वेरी लार्ज कंट्री, सो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एक्सपीरियंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट। द मेन क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ इंडिया हमें पता ही है, ठीक है, यहाँ पे मेंशन नहीं है। इंडिया इज़ अ वेरी लार्ज कंट्री, सो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एक्सपीरियंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट। मेन क्लाइमेटिक रीजन्स भी होते हैं यहाँ पे, जैसे कि हाईलैंड क्लाइमेट। हाईलैंड क्लाइमेट इज़ नोन एज द क्लाइमेट विच अकर्स मेजरली इन द पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देन ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट इज़ द रीजन वेयर इट इज़ लाई in the northeast region. This is the humid subtropical region. Why it is humid subtropical region? Because rainfall is about in a large quantity in comparison to the highland climate. Okay, then we have arid dry climate. This is the arid, the Gujarat and Rajasthan area. Then the semi-arid area, Rajasthan, Gujarat, some parts of MP. Then we have tropical then we have tropical wet and dry climate. This is tropical wet and dry climate. This is the coastal region, full coastal region, tropical wet and dry climate. wet भी रहता है और क्लाइमेट थोड़ा ड्राई भी रहता है, क्योंकि कोस्टल एरिया रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? रेनफॉल के लिए। ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट पर्टिकुलर पूरा अच्छे से जो वेट क्लाइमेट आता है वो आता है, जैसे कि केरला हो जाएगा इसका अच्छा एग्जांपल। बिल्कुल वेस्टर्न घाट्स जो कवर करते हैं पूरा रेनफॉल को, वो हो जाएंगे, ठीक है। देन वी हैव एक मिनट, क्लाइमेट रीजन्स ऑफ इंडिया हमने इतना समझा, बहुत ही आसान है इसको समझना। हाईलैंड क्लाइमेट होता है, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है, एरिड क्लाइमेट होता है, सेमी एरिड होता है, ट्रॉपिकल वेट होता है। देन क्लाइमेट रीजन्स ऑफ इंडिया, सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड हमने पढ़ा, हॉट समर्स विद मानसून रेन। सब ट्रॉपिकल इट मीन्स हॉट समर्स विद मानसून रेन, सब है, दिस इज सब ट्रॉपिकल, है ना। हैवियर इन द ईस्ट देन इन द वेस्ट, विंटर्स आर कूल, हिल्स आर कोल्ड, ठीक है। क्लाइमेट रीजन्स ऑफ हाईलैंड, क्लाइमेट रीजन्स ऑफ एरिड,